السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے فیصلوں کو اللہ پاک پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ بس اللہ پاک ہی بہترین محافظ ہے، اور وہ سب مہربان میں سے بڑا مہربان ہے، جو کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ بھروسہ رکھو، وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ اے میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتی ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میری خواہش بہت چھوٹی ہے اور تیری ذات بہت بڑی ہے۔ اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ پاک، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے میرے مولا۔ اللہ پاک تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ پاک ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو۔ اگر وہ توفیق نہ دے، وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ بہترین وقت کا انتظار، اللہ پاک نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے۔ مصروفات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے۔ اجان کا وہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے نیازگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے اللہ رب العزت پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ اللہ پاک کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ پاک کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر، وہ بہترین کرے گا۔ انشاءاللہ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیرے میں بھی سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کر دیتا ہے، ایسا معاف کر دینے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ نصیب سے جد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے جد آج لڑتی جب ہم اللہ پاک کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو بھی ہم سے یہی ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں،
मगर मसला पता क्या है, हम इंसान उसके पास जाते ही तब हैं जब दुनिया हमें तोड़ चुकी होती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। हकीकत में वो सब भी अल्लाह पाक के हुक्म से ही होता है ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जो हों। वरना तुम देखो खुशी में कौन अल्लाह पाक को याद करता है, बल्कि हम तो सबसे ज्यादा नाराज ही उसे अपनी खुशी के मौके पर करते हैं। समझ रहे हो ना इन आजमाइश के आने का मकसद? अक्सर हम देखते हैं कि हमारे सामने वालों की दुआएं कबूल हो रही हैं, उन पर इनायत की जा रही है और हमें एक जवाब तक नहीं आ रहा। मायूसी होती है, हम भी तो इतनी दुआएं मांग रहे हैं। दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि शायद अल्लाह पाक को हमसे मोहब्बत नहीं, अल्लाह पाक हमें देना ही नहीं चाहता, या शायद हमारी दुआएं ही नहीं पहुंच रही। हम कहानी का एक रुख देख कर ही मायूस हो जाते हैं, मगर हमें यह पता ही नहीं होता कि जिसकी दुआओं की कबूलियत पर हम शक कर रहे हैं, उसने पता नहीं कितनी देर इस लम्हे इंतजार किया है। उस पर किस किस तरह की आजमाइश आई होंगी। तड़प जब दिल में उतरती है तो दिन रात के आखिरी पहर में अल्लाह पाक को ढूंढने लगता है, और जानते हो वो अपनी तलाश की तलब लगाता ही तब है जब वो चाहता है मेरा बंदा मुझ तक पहुंच जाए। फिर रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियां तस्लीम करने से, उसके सुपुर्द कर देने से वो अल्लाह पाक आपकी रूह में समा जाता है, सारी उलझने सुलझा देता है, सारी प्यास बुझा देता है। तड़प सच्ची हो तो वो रब हाथ ढाक कर सीधी राह पर लाता है। वही सबसे बड़ा कादिर है, वो हमारा साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक तुम्हें इतना सब्र दे कि तुम्हारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह पाक तुम्हें इतना मजबूत बनाए कि कोई भी तुम्हें तोड़ ना सके। अल्लाह पाक तुम्हें इतना अपने करीब कर ले कि किसी और की तुम्हें जरूरत ना पड़े। अल्लाह पाक तुम्हें अपनी इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए ना तरसो। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया की इतनी समझ अदा करे कि तुम उसके हर फैसले पर राजी हो जाओ। अल्लाह पाक तुम्हें इतना कुछ नवाजे कि तुम किसी के मोहताज ना रहो। अल्लाह पाक तुम्हें अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि तुम्हें किसी और की याद न सताए। अल्लाह पाक तुम्हें अपना कुर्ब इतना अता करे कि फिर तुम्हें दुनिया की चाह ना रहे। आमीन सुम आमीन। आपकी उम्मीद का रोशन चिराग कभी भी नहीं बुझेगा अगर आपका तवक्कुल फक्त अल्लाह पाक पर है। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें यह आजीज है जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। बंदा जब बातिर होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह पाक की नजर में मोतियाब हो जाता है। सिर्फ दुआओं से मोजिजे नहीं होते, मोजिजों के लिए सर को झुकाना पड़ता है। जब दिन में 5 दफा अल्लाह पाक को मनाने जाओगे तो नसीब कैसे तुमसे रूठता है। नमाज यकीन को मुकम्मल कर देती है, और मुकम्मल यकीन रखने वालों के लिए ही तो अल्लाह पाक कुन फरमाता है। जो कहानी अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दी जाए, उस कहानी का इत्म कभी भी आंसुओं पर नहीं हो सकता। जब खाली झोली अल्लाह पाक के सामने फैलाई जाए तो फिर वो झोली खाली नहीं छोड़ता, वो दुआएं जाया नहीं करता, बस अता मुख्तलिफ तरीके से करता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। जो दुआएं यकीन से शुरू होती हैं, अल्लाह पाक उनका ताम भी यकीन पर ही करता है। सब्र करने से अल्लाह पाक वो भी देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। तुम्हारे दिल में बार बार एक ही चीज का ख्याल आना उसकी जानिब से इशारा है कि तुम उसे मनाओ। वो तो उन दुआओं के लिए भी वसीला बनाता है जो तुमने उससे कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वो उन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए उससे बार बार मांगते हो। इस देरी से मत घबराओ, बस इतना याद रखो जो काम अल्लाह पाक की रजा के लिए किया जाए वो इबादत है। फिर चाहे वो इंतजार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो, टूटे हुए दिल से निकली सदा कभी भी खाली नहीं जाती, और इबादत का सिला कभी रागा नहीं जाता। तो फिर यह सब जानते हुए भी तुम क्यों उससे मांगते हुए थक गए हो जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह पाक जरूर देगा,
اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہو اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نہیں سن رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ پاک ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحت نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور بلایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی، اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ پاک کو کبھی نہیں چنتے، اللہ پاک ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے، یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پاک کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال، اور اس رب پر یقین کا خیال۔ ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ پاک تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ سات آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہیں، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مرحلوں سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے اللہ پاک تمہیں تیار کرتا ہے، مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکو اس کو۔ اس کے سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا، جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ پاک تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے، تو اللہ پاک تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے، تو تم کن اندیشوں میں پڑے ہو۔ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک فیکن ان دونوں جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں،
जहाँ यकीन भी है और खौफ भी है। तुम्हें लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मगर तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वही बेहतर है। तुम गलती कर सकते हो, मगर जो तुम्हें यहाँ लाया है वो तमाम गलतियों से पाक है। अगर उसने तुमसे बहुत कुछ लिया है तो वो बहुत कुछ ऐसा भी देगा जिसके तुम काबिल भी नहीं थे। वो तुम्हें ऐसी मुश्किल घड़ी में, जहाँ तुम्हें सब कुछ नामुमकिन नजर आता लाता ही इसलिए है ताकि तुम जान सको कि सब कुछ नसीब या वक्त नहीं होता। कुछ चीजें बस दुआओं की मोहताज होती हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया रुकावट बने या फिर मुकद्दर। जब दुआ मखली दिल से निकलती है तो यह दुआ उसके हक में कबूल कर ली जाती है या उस दिल को सब्र दे दिया जाता है। तुम्हारा यकीन ही तुम्हें जिंदा रखता है, और जब सारी उम्मीदें अल्लाह पाक से वाबस्ता कर ली जाएं तो हार जाने का डर कैसा। जो जंग अल्लाह पाक के साथ मिलकर लड़ी जाती है उसमें शिकस्त कभी नहीं होती। जिसका कोई ख्याल नहीं करता उसका अल्लाह पाक ख्याल रखता है, और उसकी आगों से बेहतरीन और महफूज जगह तो कोई भी नहीं। जिंदगी को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करने वाले अहमक होते हैं। तुम अल्लाह पाक के मुताबिक जीना सीख जाओ, फिर वो तुम्हारे मुताबिक जिंदगी को बना देगा। जो दुनिया अपने आप में ही बिखरी हुई है तुम्हें कैसे समेटेगी, तो फिर तुम उसकी तरफ लौट आए। जो उसे समेट लेता है फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बस वही एक तुम्हारा है तो तुम भी उसके बन जाओ। जब तुम्हारा बन जाएगा, जिंदगी अभी भी बाकी है। राहें भी निकलेंगी और बहुत से नए दरवाजे भी खुलेंगे। मंजिलें भी मिलेंगी और मौजज़े भी होंगे। दास्तानें भी मुकम्मल होंगी और दुआएं भी कबूल कर ली जाएंगी। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके मिलने का तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा इतना तवील सफर तय करके यहाँ तक आना और सब्र करना कुछ भी बेमकसद नहीं है। तुम्हें इसका सिला जरूर मिलेगा, और यूं मिलेगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह पाक तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया कि तुम मायूस होकर हिम्मत हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जहाँ हो वहाँ बेवजह हो? तुम खुद यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तुमने बेशुमार तकलीफें आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए ही बर्दाश्त की। इतना सफर तय कर लेने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हार गए हो? इतने कठिन सब्र के बाद अब जब सिला मिलने का वक्त तो क्यों रास्ते में ही ठहर गए हो? उठो, अभी तो सफर खत्म होने को है। अब तुम मंजिल को नहीं बल्कि मंजिलें तुम्हारी मुंतजिर हैं। अब तुम्हें मोजिजों का नहीं बल्कि मोजिजों को तुम्हारा इंतजार है। अब कुन तुम्हारी एक आखिरी दुआ का इरादा बांधे हुए कि यहाँ तुम मांगो और वहाँ तुम्हें मुंह से निकली पहली फरियाद पर ही नवाज दिया जाएगा। अब सब्र के जमाने गुजर गए, अब सिले का वक्त है। अब सिसकने का नहीं, अब कबूलियत का वक्त है। अब मसाफत खत्म होने को है, अब आंसू के मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है, किसी और का नहीं। अब यह तुम्हारा वक्त है। हजारों मायूस लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है? जिसने दुआ का हुक्म दिया है उसने कबूलियत का वादा भी तो कर रखा है। तो फिर इस दिल को मना लो यकीन पर और उसको अपनी रजा में राजी कर लो। अगर उसने राजी ना होना होता तो वो तुम्हें भी कभी मनाने का इशारा न देता, और वो यकीनन तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करते थे। कभी कभार बस एक दुआ ही सब बदलने के लिए काफी होती है, खास तौर पर तब जब कुछ भी बदलना दिल को मुमकिन नहीं लगता। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर है और तुम्हारे ख्यालात उस मुकद्दर की हकीकत हैं। तुम जब जब अल्लाह पाक के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हो तब तब अल्लाह पाक तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी रजा के मुताबिक बदलता है। और सच यही है कि जिंदगी में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, और तुम वही पाते हो जिस पर तुम सब्र करते हो, क्योंकि अल्लाह पाक इस झोली को कभी खाली नहीं रखता जो सिर्फ उसके सामने फैलाई जाती है। बस मसला यह है कि तुम जरा सा इंतजार करते हो और थक जाते हो, फिर खुद से ही गुमान कर बैठते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती या अब बहुत देर हो गई है और अब कुछ बदल नहीं सकता। हालांकि वो रब तो अपने कामों में देर सबेर होने ही नहीं देता। जो तुम्हें देरी लग रही होती है वो दरअसल उसकी हिकमत होती है, और जो भी तुम्हें मिलता है अपने और सही वक्त पर ही मिलता है। तो फिर डर कर इन वसवसी ताखी पर मायूस मत हो जाना।
हालात कितने ही क्यों ना मुश्किल हो जाए, तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसका एक कुन तुम्हारा सदियों का काम लम्हों में कर सकता है। और जो दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल में ला सकता है, वो इस ख्याल को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पर भी कादिर है। दुआ की तौफीक कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है, जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता, तुम्हारा नसीब भी नहीं। अल्लाह पाक हर उस आंसू से वाकिफ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। वो हर उस दुआ से वाकिफ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए तुम्हारा दिल तकलीफ से फट रहा था। वो हर उस फरियाद से वाकिफ है जिसे तुमने तड़पते हुए जुबा में दबा लिया था। वो हर उस सदा से वाकिफ है जब तुमने कुर्ब के मारे सजदे में गिरते हुए अल्लाह पाक को पुकारा था। वो उन रातों की बहसत से भी वाकिफ है जब सब सो रहे थे और तुमने आवाज के खौफ से दर्दनाक चीख को जब्त करके मुंह के हाथों से दबा लिया था। वो हर उस लम्हे की अजियत से वाकिफ है जब तुम्हें लगा था कि तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तब बस वही एक था जो तब भी तुम्हें सुन रहा था, देख रहा था, तुम उसे नहीं सुनते, लेकिन वो तुम्हें हर घड़ी हर लम्हा सुनता है। वो सब जानता है, बस वही है जो दिल के हाल जानता है, बस वही है जो यह हाल बदल सकता है, बस वही है कि उसके जैसा और कोई नहीं। अल्लाह पाक तो छोटी सी चींटी का हक भी जाया नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो जाया कर देगा? सब्र रखो, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है, वो उन ख्वाहिशों को पूरा करने पर भी कादिर है। वो वक्त जल्द आएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए कुन के मोजज़े होते देखेंगे। वो तुम्हारी इन रोती हुई आंखों को यूं ठंडा कर देगा जैसे उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा कर दिया था। वो तुम तक हर खोई हुई चीज वापस यूं ले आएगा जिसे वो अंधे कुएं से हजरत यूसुफ को निकाल कर हजरत याकूब तक ले आया था। क्या हो सकता है क्या नहीं, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बस दुआ करना है। फिर देखो वो ऐसे मोजज़े लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस तुम वो करो जो तुम्हारा काम है, और अल्लाह पाक तो वो कर रहा है जो उसका काम है। अल्लाह पाक यकीन और आजमाइश के लिए बस अपने खास बंदों को चुनता है, और जिन्हें चुन लेता है वो अल्लाह पाक के इंतखाब पर राजी हो जाते हैं। फिर हम हर उस सांस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह पाक ने हमें खुद तक ले जाने के लिए दी है। फिर हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं। फिर हम अल्लाह पाक के फैसलों में अपना सुकून तलाश कर लेते हैं। अल्लाह पाक तक हम अचानक ही नहीं पहुंच जाते, बहुत लंबा सफर तय करके उस तक रसाई मिलती है। जब हमें उड़ान का शौक होता है तब वो हमें मुंह के बल जमीन पर गिराता है। फिर जब यकीन के पर जख्मी हो जाते हैं तो उन जख्मों को मोहब्बत के जरिए भरना सिखाता है। कभी अपनी रजा से आजमाता है और कभी हमारी रजा अता करके अपनी तरफ लाता है। वो हम सबको मुख्तलिफ जरियों से परखता है, आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी तरफ खींचता है, परों को नई परवाज़ सिखाता है, फिर ऐसी उड़ान से नवाजता है कि सारा जमाना देखता रह जाता है। उसके जवाब में भी हिकमत होती है और उसकी खामोशी में भी। तुम सुना करो दिल लगाकर जो वो तुम्हें बताता है। जो रास्ते अल्लाह पाक से जुड़ जाते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह पाक की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसा महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है क्योंकि अल्लाह पाक साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल तसू में डूबता चला जाता है। हम मसलियत समझकर अंबार नहीं लगाते, वो रहमान है, उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उससे जुड़ता है वो उसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। जिंदगी के चारों अंतरा में मोहब्बत इलाही होती है और हम होते हैं बस यह अल्फाज होते हैं। मुबारक हो तुमने अपने रब को पा लिया। तुम बस यकीन रखो अल्लाह पाक पर, यकीन रखना उसका काम, और जब तवक्ल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। तवक्ल के दो मरहले होते हैं। एक वो जब उस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन भी होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। हम पहले मरहले तक तो पहुंच जाते हैं मगर दूसरे मरहले तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि दिल यह नहीं मानता कि जो चाहिए वो ना मिले। मगर रफ्ता रफ्ता जिंदगी सब कुछ समझा देती है, कभी गिरा कर और कभी संभाल कर लगता है। मगर यह भी सच है कि वक्त गुजर जाता है। कोई साथ चले या न चले, कोई अपना बने या ना बने, अल्लाह पाक ही तुम्हारा सबसे बड़ा कारसाज है
और यह दुनिया तो तुमसे कुछ ले सकती है और ना तुम्हें कुछ दे सकती है। तो तुम यकीन रखो, फिर देखना वो कैसे इस यकीन की डोर को कभी टूटने नहीं देगा। दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। दुआ मांगी ही इसलिए जाती है कि वो कबूल हो, और वो कबूल भी होती है, लेकिन वक्त पर बस इंतजार दरकार है। दुआएं नजर से ओझल जरूर होती हैं, किसी को दिखाई नहीं देती और ना ही सुनाई देती हैं, लेकिन जब कबूल होती हैं तो दिखाई भी देती हैं और सुनाई भी देती हैं। दुआ सब्र मांगती है, इंतजार मांगती है। जब हर चीज के होने या ना होने में वक्त लगता है, फिर दुआ क्यों नहीं? यही तो बात है, इंसान न सब्र करना सीखता है, ना ही इंतजार। जरूरी तो नहीं कि हर दुआ मांगने के साथ ही कबूल हो। दुआ तो उड़ते हुए परिंदों की तरह होती है, जो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तो कबूल होने में शक कैसा? तुम्हारा काम तो मांगना है, देना न देना तो रब का काम है। तुम्हारी हर वो दुआ जो तुमने पूरी शिद्दत से मांगी है, वो अल्लाह पाक के पास बहुत संभाल कर रखी हुई है। वो तब तुम्हें नवाजेगा जब सही वक्त होगा, जब उसकी मसलियतों के तहत तुम नवाजे जाओगे। और बेशक तुम्हारी अर्श तक गई कोई सदा भी खाली नहीं जाएगी। एक एक पुकार का जवाब वो रब जरूर देता है। यकीन जानो, यह मुश्किलात महज चंद घड़ियों की है। बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हें वो अता फरमाएगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है और जिसकी तुम्हें जरूरत है। और बेशक वो रब हमारी जरूरतों से पूरी तरह से वाकिफ है। लोग ना तो आपका मसला है और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं मांगनी। लोग कुछ भी नहीं है, यह मामला सिर्फ आपका और अल्लाह पाक का है। तो जैसे अल्लाह पाक ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह पाक के मामले में किसी भी से भी मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। आप अल्लाह पाक से तब तक मांगे जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल जाएं, क्योंकि अजर तो अल्लाह पाक ने ही आखिर में देना है। ना तो यह नहीं सोचना कि लोग जो मांगने से रोक रहे हैं, अगर वो ना मिला तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह पाक से मांगने वाले शर्मिंदा कभी नहीं होते, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई हार में भी जीत होती है। न मांग कर पछताने से बेहतर है कि आप एक बार अपनी पूरी कोशिश करें। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, मर्जी तो सारी अल्लाह पाक की है और अल्लाह पाक जिसे चाहता है फतेह देता है। मुश्किल वक्त में भी दुआ मांगना ना छोड़ें। हाँ, वक्त आपके हाथ में नहीं, लेकिन वक्त को बदलने का इख्तियार है आपके पास। दुआ से यह ना सोचिए कि वो नहीं देख रहा, वो नहीं सुन रहा, वो तो सहारक से भी ज्यादा नजदीक है आपके। वो कैसे तुम्हारी तकलीफ से बेखबर हो सकता है? वो देर कर सकता है लेकिन रद्द नहीं कर सकता। उसे पसंद है तुम्हारा मांगना, उसे अच्छा लगता है तुम्हारा फक्त एक उसी जात के आगे हाथ फैलाना। दुआ ना भी मांगी जा रही हो तो बस हाथ उठा लिया करो, उसके आगे रो लिया करो। क्यों, आंसुओं की भी जुबान होती है और उसके आगे बहाया गया एक भी आंसू जाया नहीं जाता। पता है जिंदगी कब मुश्किल होती है, जब हम अल्लाह पाक के मुकर्रर किए गए वक्त पर अपनी मर्जी की टाइमिंग सेट करना चाहते हैं। और जिस दिन हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन जिंदगी बदल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, यकीन आ जाएगा। बेहतर है इस बात को समझ लिया जाए, वरना हमारे चाहने या न चाहने से वक्त और हालात बदल नहीं सकते। बदलते तभी हैं जब अल्लाह पाक चाहता है। जरूरी नहीं कि दुख ही अल्लाह पाक के करीब होने की वजह होती है। कभी कभी अल्लाह पाक को तुम्हारी कोई बात ऐसी भी पसंद आ जाती है जो वो तुम्हारे दिल में अपना ख्याल डाल देता है। बिना तकलीफ दिखाए जरूर नहीं होता कि दुख सजदा करने पर मजबूर करे। जिसको अल्लाह पाक खुद बुलाने का इरादा कर ले, उसके लिए क्या गम और क्या खुशी। वो दिल अल्लाह पाक को ढूंढ लेता है। अल्लाह पाक टूटी हुई चीजों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है, टूटी हुई फसल की पैदावार के बीच पौधों की जिंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है आप टूट चुके हैं तो यकीन करें कि अल्लाह पाक आपको किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। यह जो दुख होते हैं न जरूरी होते हैं, यह हमें उसी दर पर ले जाते हैं। वही रब के पास जैसा बच्चा चोट खाकर माँ की तरफ भागता है, बिल्कुल वैसे ही हम अल्लाह पाक की तरफ भागते हैं और उसी से रुजू करते हैं। जब हमें दर्द होता है कोई और दर्द नहीं मिलता, जब कोई सहारा नहीं रहता, जब सांसें तंग सी होने लगती हैं, जब हम ठुकराए जाते हैं, जब हम रुलाए जाते हैं, तब हम अल्लाह पाक को पुकारते हैं
اور وہ رحمان اور رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے۔ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ پاک تم برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ پاک کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اتم لاحاصل پر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیز بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ تو جو کہانیاں اللہ پاک لاحاصل پر ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلیحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت میں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ پاک چاہے تو تمہیں تمہارے حال پر بھی تو چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی۔ تم نہیں سمجھتے مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹ کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری تکلیف جانتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رب آپ کی سحرگ سے بھی زیادہ قریب اور آپ رونے کو کندھا ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ پاک چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کی حکمت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے جرب کی کن وصیتوں پر جا کر کتنا صبر کرتا ہے۔ ہمیں وہ آزماتا ہے۔ جب انسان کی محبت آزمائش بن جائے تب اللہ پاک کی محبت تمہارے دلوں میں معجزہ بن کر اترتی ہے۔ ہم مسلسل آزمائے جاتے ہیں نعمتوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں، یا مشکلوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے صابر ہیں۔ اللہ پاک تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ پاک کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جس دن تمہیں یہ پتا چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے تو تمہاری ساری بے شک ختم ہو جائے گی۔ رکاوٹ اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمت یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ تمہاری پسند سے اللہ پاک تمہیں آزماتا رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ پاک کو محبت ہے بہت ہی زیادہ، تم تبھی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، اے شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ توقع کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ پاک تمہاری زندگی میں بہار لا رہا ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائش تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ پاک بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ پاک بن جاتا ہے۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو، وہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ جس کا نام سلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے۔ جس کا نام الغفور ہے یعنی
बख्शने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। गमगीन ना हो, जो भी तुम खोते हो उसे किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। हम इंसानों को तो चाहिए कि हम उस रब का शुक्र हमारी कुछ दुआएं कबूल न करने पर भी करें। सोचे जो कुछ आज तक आपने मांगा वो सब मिला होता तो कितने मसाइल होते हैं इस वक्त आपके साथ, इसलिए उसकी हिकमत पर सवाल नहीं करना चाहिए। शुक्र अदा करो उस दर्द का जिसकी वजह से तुम्हें सजदों की तौफीक दी गई, क्योंकि सजदा उसकी रजामंदी का एक ऐलान है। कायनात में कितनी बड़ी बड़ी रुकावट क्यों ना आ जाए, कोई ऐसी रुकावट नहीं जो तुम्हारी आवाज को उस तक ना जाने दे, कोई ऐसी पुकार नहीं जो अल्लाह पाक ने तुम्हारी सुनी ना हो। अगर वो देर कर रहा है तो मुमकिन है कि उसके पीछे उसकी मसलियत हो या तुम्हारा मांगना उसे पसंद आ गया हो। जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजूदों का बादशाह है और उससे बेहतर कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहां चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज बदल सकता है और जिंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान जाओ वो तुम्हारी मान जाएगा। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए वक्त तहज्जुद सरसजदे से नहीं उठता, जिसके लिए बार बार अल्लाह पाक को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर उम्मीद रखो, क्योंकि इस सब्र का सिला करीब है। अगर उसने राजी ना होना होता तो वो तुम्हें कभी भी मनाने का इशारा न देता, और यकीनन तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करते थे। कभी कभार बस एक दुआ ही सब बदलने के लिए काफी होती है, खास तौर पर तब जब कुछ भी बदलना दिल को मुमकिन नहीं लगता। जब भी आप अकेले हों तो अपने आप को यकीन दिलाएं कि अल्लाह पाक ने बाकी सबको इसलिए रुखसत किया है आपकी जिंदगी से, ताकि वहाँ सिर्फ आप और वो अल्लाह पाक हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुकद्दर है। तुम जैसा सोचोगे अल्लाह पाक को बिल्कुल वैसा ही पाओगे। जिसे दर्द आंख में होता है मंजर में नहीं, बिल्कुल वैसे ही जिस सुकून को तुम दूसरों में तलाश करते हो वो सिर्फ तुम में है। पता है यकीन क्या है? जब सारी दुनिया ठुकरा दे, सारी दुनिया नफरत करने लगे, तब भी अल्लाह पाक की मोहब्बत पर यकीन, खैर की सब अलामत दिखाई देने के बावजूद भी उस रब के रहम पर यकीन हो। लोग लाख मर्तबा कहें यह मुमकिन नहीं, लेकिन उसके कुन पर यकीन, सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी उसकी कुदरत पर यकीन। फिर जब तुम उसको दिन के उजालों में धूल नहीं पाते हो तो वो तुम्हें अंधेरों से नवाजता है कि चले आओ मेरी जानिब, मैं मुंतजिर हूँ तुम्हारी वापसी का, तुम्हारी आवाज का, तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी गर्ज का। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है, उसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आजमाइश तो हमेशा मनपसंद चीज से ही तो शुरू होती है। नसीब से जिद कभी नहीं लड़ सकती, नसीब से आजीज लड़ती है। जब हम अल्लाह पाक के एहतराम में सर झुका लेते हैं, जब हम उसकी रजा के लिए रेजा रेजा होकर मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, तो वो इस मिट्टी से हमें दोबारा जिंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है। फिर वो अपने हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिस पर हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। मायूसी और उम्मीद तुम में है। वो कहता है अल्लाह पाक तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम उन चीजों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो अल्लाह पाक तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम मांगते हो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना ही मोमिन की पहचान है। फिर एक रोज तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम बाज और अल्लाह पाक ने तुम्हें रोक लिया। डरते क्यों हो तुम? अल्लाह पाक है ना, वो बचा लेता है। वो तुम्हें कभी ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिनका सामना ना कर सको। अगर किसी मुश्किल में डालता है तो दरअसल वो तुम्हें उसके जरिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। वो जानता है तुम किस कुर्ब से गुजर रहे हो। वो तुम्हें कभी बेयार व मददगार नहीं छोड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को पहुंचने वाली हर तकलीफ, बीमारी, गम, थकावट, फिक्रमंदी के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। अल्लाह पाक तो हर नामुमकिन सफर को मुमकिन बना सकता है। वो बस तुम्हें सुनना चाहता है और तुम्हें अपने करीब करना चाहता है, ताकि वो फिर तुम्हारी दुआ कबूल करके तुम्हारी जिंदगी खुशियों से मुकम्मल कर दे। और पता है
शर्मिंदा नहीं करेगा, वो गिरते हुए देख रहा है, गिरने नहीं देगा, तसल्ली देगा, सहारा देगा, और जो जिंदगी तुमने खुद बिगाड़ी है उसे फिर से बनाएगा। वैसे जैसी तुम चाहोगे, दिल जिस बात पर जिद करता है, रब उसी बात पर आजमाता है। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।